So today we are going to discuss about pericardial diseases and tumors of the CVS, right? So आपने अपनी जिंदगी में अगर आप इर्द गिर्द अपने माजी के ऊपर नजर दौड़ाएं तो आपको ये जरूर याद आएगा कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जानने वालों में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो कि सडन कार्डियक डेथ की वजह से इस दुनिया से गया हो, या कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो कि इसके बारे में आपको पता होगा कि जिसको कार्डियक डिजीज है. So cardiac diseases are among the highest causes of mortality and morbidity in developing as well as developed countries. And if you look at the pain and the problems they cause, sclerosis, you can simply imagine. I had quite a few people in the family who have had cardiac diseases. Excuse me. One of my relatives, he died at the age of 30 of sudden cardiac death. सोए हैं और उसके बाद उठे हैं तो पता चला है कि जी सांस नहीं आ रही है, and he was taken to the hospital और वहां जाने से पहले रास्ते में ही डाइड. इसी तरह फैमिली के अंदर ही कुछ बल्कि एक फ्रेंड्स में अगर आप कह लें तो 30-year-old guy सडनली ही फेल्ट कि जी मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, और उसके बाद अब बिल्कुल दुबला पतला, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मोटा ताजा बंदा हो, एंड ही वाज लाइक टेकन टू तब्बा. पता चला कि जनाब मायोकार्डाइटिस हो गया. मायोकार्डाइटिस मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट यू वुड नो दैट कि सो द कार्डियक डिजीजेस, ऑल्दो ऐसा लगता है कि बड़ी एज में जाके होने वाली बीमारी है, बट it affects all ages, people all around you. I remember another friend of mine who used to stay with us when I was in the UK. कि वो भी बड़ा पतला दुबला सा एक्टिव सा बंदा था, एंड सडनली ही फाउंड आउट कि जी उसको चेस्ट पेन ऑन एंड ऑफ हो रहा है, और जब उसने अपना चेकअप कराया तो पता चला कि जी उसको फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया है. तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड अदर ट्राइग्लिसराइड्स एंड ऑल अदर दोस लेवल्स, दे वर ऑल शूटिंग अप through the roof. तो उसको अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, but like he had to take precautions and all those lipid lowering drugs and all that. So somewhat preventable होते हैं morbidity और mortality, और कभी sudden cardiac death भी हो जाती है. और आज भी हम जो pericarditis और pericardial effusion पढ़ेंगे उसके में we'll talk about sudden cardiac death कि किस तरह होती है. Right, so what are our objectives for today? सबसे पहले we will talk about pericarditis, pericardial effusion, and what causes them. Then we'll talk about the tumors of vascular origin, and we'll provide I'll provide you the brief description, and then I'll expect you to reproduce that in your exams. And the third one is describe the tumors of heart preview. So this is what you should be able to do after getting through this lecture and memorizing the stuff which I'll just throw at you. So the pericardial diseases, effusion and inflammatory conditions. There are two problems which will mainly be there when you talk about pericardium. So what is pericardium? It is a covering around the heart, and what it does, it protects the heart. And if you, I don't know if you can see my hands. So the heart is like this and the pericardium is like this, right? So heart is contracting and relaxing within this pericardial space. So this is lined by a fluid normally. It's about 150 ml of fluid if I remember correctly. जो कि इसको lubrication भी फराहम करता है और उसको space भी फराहम करता है जिसके अंदर cardiac activity हो रही होती है. So the excessive fluid in there will be called effusion. Normally it is serous fluid, but it can be like in case of infection, or it can in case of any myocardial rupture, it would be the type, it will have blood. So serosanguinous कहते हैं उसको. It might have pus, which is rare, but generally blood भी हो सकता है, fibrinous भी हो सकता है. और generally जो effusion और inflammatory conditions हैं ये हार्ट पेरिकार्डियम की अपनी नहीं होती. It's not something which is directly involving primarily from pericardium. It is mainly coming from the structures which are
away from pericardium or which are related to pericardium. For example, the heart. So if there is a myocardial rupture, the blood will seep into the pericardial cavity. It could be from the lungs, suppurative pericarditis हो सकता है. It could be secondary to a systemic disorder like uremia. So what is pericarditis? It is the inflammation of the pericardium. So there's a picture from your Robbins. All these pictures which you have in that particular topic, I believe you should be able to identify them कि ये क्या है. So बहुत ज़माने पहले, I don't know, I've probably lost that particular slide collection of slides. I found a slide collection where there was every picture from the Robbins. हो सकता है कहीं किसी कोने में अभी भी पड़ी हुई हो, but I don't have that now right away. But all these pictures should be in your mind कि अगर आप उसको देखें तो आप उसको पहचान पाएं जिस तरह आपकी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं. उससे ज़्यादा पिक्चर्स नहीं होंगी probably कि आप उसको पहचान पाएं कि ये पिक्चर क्या बता रही है. What was there in it? Because नॉर्मली ऑस्पी के अंदर हम आमतौर से इतनी जहमत नहीं करते कि बाहर से नहीं लेकर, और ये ठीक भी नहीं कि हम आपको बाहर से कोई पिक्चर ला के दें और आपसे कहेंगे इसको आइडेंटिफाई करो. और इट्स मच बेटर कि वी गिव यू पिक्चर फ्रॉम रॉबिन्स एंड वी कैन आस्क यू कि ये क्या है. So you should be able to tell what it is. I remember when I was in my ENT Viva, he showed me otitis media and I said कि इसकी mastoidectomy, पता नहीं mastoid की सर्जरी हुई है. He was like इतनी बुरी mastoid की सर्जरी तो पता नहीं कौन करता हो. पास हो गया मैं, लेकिन ये कि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कभी. So primarily pericarditis नहीं होता. It's generally a secondary cause. क्योंकि हो सकता है in general the infection could be viral, could be bacterial, could be fungal, could be parasitic, but remember that most commonly it is viral infection. So this is your first MCQ. ठीक है, तो मायोकार्डाइटिस और इन्फेक्शन दोनों साथ साथ होगी. पेरिकार्डाइटिस का कॉमनेस्ट इन्फेक्शियस कॉज वायरसेस होते हैं. एक्यूट एमाइल से सेकेंडरी हो सकता है, कार्डियक सर्जरी से सेकेंडरी हो सकता है, फिजिकल इंजरी है, रेडिएशन टीबी इंजरी होती है मीडियास्टिनम पे, इसकी वजह से सेकेंडरी हो सकता है. thoracic एरियाज के अंदर निमोनिया और प्लूराइटिस could cause जो है वो सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस. एंड यूरेमिया is one of the systemic disorders जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस. नतीजा क्या निकलेगा? So now I want you to imagine two conditions. There is one जिसमें every day you get 1 cc of maybe of new fluid in the pericardium, and in the second condition it's a chronic condition where you get like 1 cc per week maybe. So जहां पे आपको immediately पहली वाली कंडीशन को हम यूं कर लेते हैं कि you get 150 cc of fluid in pericardium in one go, maybe in a period of 2 days. और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हर हफ्ते 2-3 सीसी जो है उसके अंदर ऐड हो जाता है. तो आपके ख्याल में, अच्छा क्योंकि ये इंटरैक्टिव क्लास अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं होती है और यहाँ तो वैसे चैट बॉक्स भी बंद रखना चाहिए मुझे अखलाकन, लेकिन ये कि मजबूरी है. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोचें कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि इसमें से इमीडिएट इफेक्ट किसका है, तो कौन सा ऐसा होगा जो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इनकम्पैटिबल विद लाइफ हो जाए, जिसकी वजह से बंदे की जो है वो सडन कार्डियक डेथ हो सकती है. So give you a minute to think कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है. So much reassuring to see your own face on the camera. इस दौरान में मैंने फायदा उठाते हुए अपना कैमरा ढूंढ लिया. तो खैर, अच्छा अब हो ये रहा है
कि पहली सूरत हाल के अंदर हर चंद दिन में 1 सीसी ऐड हो रहा है, तो आपको पता है बॉडी जो है अडेप्टेबल है। हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्लास्टिक, वो वाला प्लास्टिक नहीं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक मीन्स कि इट अडेप्ट्स टू द सिचुएशन, इट कैन कम बैक टू व्हाट इट वाज देयर बिफोर, और उसमें टाइम लग सकता है बट इट अडेप्ट्स जनरली। बट इफ यू गेट a patient where the effusion has taken place in a matter of a couple of days, or 150 ml की effusion है, तो it will lead to a condition which will basically not allow the heart to expand and relax. तो जब हार्ट रिलैक्स नहीं होगा, उसकी फिलिंग नहीं होगी, जब उसकी फिलिंग नहीं होगी तो वो आगे ब्लड क्या पंप करेगा, and the person will die of something that is called cardiac tamponade. So acute pericarditis can cause cardiac tamponade, which with declining cardiac output and consequent shock, मर जाएगा बंदा. And chronic constrictive pericarditis produces a combination of right-sided venous distension and low cardiac output, similar to the clinical picture in restrictive cardiomyopathy, but it will take more time, or maybe heart will get adapted. हम पेरिकार्डाइटिस की बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं इसके अगले हिस्से के ऊपर, जिसको हम कह रहे हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा जी, एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। लेट मी रिवाइज पेरिकार्डाइटिस फॉर यू फर्स्ट। पेरिकार्डाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम था। प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस जो था वो अनकॉमन था। सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस जो था वो comparatively different causes to it. देखो ये तुम्हारा वाइवा का क्वेश्चन है, what are the causes of pericarditis, what is pericarditis? So remember that infectious causes हैं, acute MI है, cardiac surgery है, radiation है, pathology of thoracic structures है, और ये causes हैं। sequel क्या है? acute pericarditis है। I sort of mixed it up with pericardial effusion, I'm sorry। तो acute pericarditis जो है वो gradually cardiac tamponade cause कर सकता है, cardiac output कम होगा और शॉक हो जाएगा, नॉट ग्रेजुअली, रैपिडली। और क्रॉनिक जो है वो यही काम करेगा, बट इट विल कॉज इट थ्रू स्टेजेस, थोड़ा टाइम लेगा, एंड इट विल इफेक्ट द पर्सन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। आपको नजर आएगा इफेक्ट थोड़ा टाइम के साथ। पेरिकार्डियल एफ्यूजन क्या है? एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड, बिकॉज पेरिकार्डाइटिस होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो फ्लूइड आएगा, so it will lead to pericardial effusion. Normally 30 to 50 ml serous fluid, sorry it was 30 to 50। चार टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास सिंपल फ्लूइड हो सकता है, जिसके जो कि नॉर्मल फ्लूइड भी है वैसे ही है, जिसको हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपोएल्बुमिनिमिया। सीरोसैंग्विनस हो सकता है, दैट मींस के अब उसके अंदर ब्लड भी शामिल हो गया है, जिसका रीजन क्या हो सकता है? ब्लड चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है, मैलिग्नेंसी में हो सकता है, रप्चर्ड एमआई में हो सकता है, और एओर्टिक डिसेक्शन में हो सकता है। देन काइलस, दैट मींस इट विल हैव लिम्फ इन इट। मीडियास्टिनल लिम्फोटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है, किसी फिजिकल कॉज की वजह से हो सकती है, किसी पैथोलॉजी की वजह से हो सकती है, लाइक ट्यूमर, सम इन्फेक्शंस आल्सो कॉज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। एंड देन फिब्रिनस हो सकता है, व्हिच विल हैव मोर प्रोटीन इन इट, एंड द कॉजेस विल बी इन्फ्लेमेशन। So if I ask you in your bio कि जनाब tell me the causes of pericardial effusion, so आपने ये नहीं करना है कि चारों में से एक एक बता दिया। You classify it first, बड़े आराम और सुकून के साथ, बहुत ज्यादा आराम भी ना हो क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, और उसके बाद you start telling me one by one, like you will say the serious होता है, serious sanguinous होता है, काइलस होता है, फाइब्रिनस होता है। आपने क्लासिफाई कर दिया, अब टीचर को पता है कि आपको पता है। उसके बाद आप कहें सीरियस में कॉजेज हो सकते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड हाइपोएल्बुमिनिमिया। सीरोसैंग्विनस में कॉजेज हो सकते हैं ब्लड चेस्ट ट्रॉमा, मैलिग्नेंसी, रप्चर्ड एमआई, एओर्टिक डिसेक्शन। काइलस में कॉजेज हो सकते हैं मीडियास्टिनल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और फिब्रिनस का कॉज हो सकता है इन्फ्लेमेशन, एंड दैट मेक्स यू अ डिस्टिंक्शन वाला स्टूडेंट। तो जनाब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इट कैन हैव अप टू 1000 ml ऑफ फ्लूइड। ये बड़ी अजीब सी बात है, मुझे भी लगी थी, लेकिन ये है। सो उसका नतीजा क्या निकलेगा? डिपेंड्स अपॉन अ फ्यू फैक्टर्स। सबसे पहले कि फ्लूइड कितना है,
Secondly, what is the speed of accumulation of that fluid? And third is कि pericardium कितना stretch हो सकती है. So if you are giving it time, that means it will stretch more because it is adaptable. If you're not giving it time, that will lead to cardiac tamponade. Slowly accumulate हो रहा है 1000 ml of fluid है, अगर rapidly accumulate हो रहा है 250 ml के बाद ही cardiac tamponade हो जाएगा because उसको stretch करने का time, उसको accommodate करने का time नहीं मिलेगा. And what is the mechanism? Diastolic filling leading to cardiac tamponade and death. उसकी restriction होती है, वो relax नहीं हो पाता heart, नतीजतन cardiac tamponade हो जाता है और उसकी death हो जाती है. So mechanism आपसे नहीं पूछते हैं आमतौर से. Why? लेकिन आपको पता होना चाहिए because you are not studying for your exams, you are studying for becoming a good doctor. तो आपको मैकेनिज्म मालूम होने चाहिए, लेकिन वाइवा में बहुत कम ऐसा होगा कि आप उसके मैकेनिज्म तक जाएंगे. उस मैकेनिज्म के क्वेश्चन जो होते हैं वो 9th और 10th क्वेश्चन होता है, आमतौर से वहां तक हम पहुंच नहीं पाते. सो लेट्स मूव ऑन. ट्यूमर्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अच्छा, अब उसके अंदर हमारी दो स्टेजेस हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन टू स्टेजेस. द फर्स्ट वन इन व्हिच वी विल स्टडी द ट्यूमर्स ऑफ the vascular system, and then we will talk about the tumors of the heart. So vascular system के अंदर you have this classification is given in your basic pathology. अच्छा, कल इत्तेफाक से मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था तो मैं बेसिस भी देख रहा था, उसके अंदर जरा डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन, तो वो वाला चार्ट भी देख सकते हैं. So अब जनाब जो बेनाइन न्यूप्लाज्म्स हैं और ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली न्यूप्लाज्म लाइक कंडीशंस बट नॉट ट्रू ट्यूमर्स. उसमें सबसे पहले आपके पास जो आते हैं वो, अच्छा यहाँ क्लासिफिकेशन के अंदर इसको नीचे दिया हुआ है और जो टेक्स्ट है उसके अंदर इससे पहले वाला प्रॉब्लम है तो फ्रॉम खैर. So vascular ectasia. Ectasia is a general term and it means dilatation of a structure. और जब हम बात करते हैं telangiectasia की तो that is the dilatation of a vessel. तो हमारे पास vascular ectasias होते हैं जिसमें nevus flammus है, spider telangiectasia है और hereditary hemorrhagic telangiectasia है जिसको Osler-Weber disease भी कहते हैं, syndrome भी कहते हैं. और एक और Port-wine stain उसे कहते हैं, that is a type of nevus flammus. फिर इसी तरह के एक्टेजियास जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी सिंपल या कैवर्नस एक्टेजियास हैं या एक्टेजियास हैं. और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमें हेमेंजियोमास मिलते हैं. जनरली दीज आर ऑल बेनाइन ट्यूमर्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. एंड देन वी हैव रिएक्टिव वैस्कुलर प्रोलिफरेशंस. ये आपका एमसीक्यू के हवाले से बड़ा खूबसूरत सवाल है. देयर आर टू बैक्टीरिया बार्टोनेला टाइप के व्हिच कॉज दिस, और हम अभी पढ़ेंगे आगे जाकर. फिर इंटरमीडिएट ग्रेड न्यूप्लाज्म्स हैं जिसमें कापोसिस सार्कोमा है, हेमेंजियोएंडोथेलियोमा है और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म इसमें एंजियोसार्कोमा है. तो आपसे ट्यूमर्स नॉर्मली मैंने देखा है, हो सकता है आपके लिए ये बात ठीक ना हो, लेकिन इन जनरल व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस फ्रॉम योर वाइवा, बच्चे ट्यूमर पढ़कर नहीं आते. क्यों नहीं पढ़कर आते हैं मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई. हालांकि जब हम पैथोलॉजी पढ़ते थे बचपन में अपने, तो ट्यूमर से बहुत डरते थे और सारे ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन कम से कम याद जरूर करते थे क्योंकि हमें पता होता था कि ये तो पूछ नहीं है. सो आई वाज वंडरिंग कि आपके साथ भी ऐसा तो नहीं. अनफॉर्चुनेटली फिर ये एक वन वे क्लास चल रही तो मैं पूछ नहीं सकता क्लास के अंदर, बट लेट्स मूव ऑन. ट्यूमर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. So origin could be from the endothelium of the vessel. For example, you will have hemangioma, lymphangioma, and angiosarcoma. Or there is a tumor-specific tumor called glomus tumor, which is coming from the supporting tissue. Again, this is your MCQ question. So आपसे पूछा जा सकता है which of the following arises from the supporting structures of the vessels. So 4 ऑप्शंस होंगे या 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक जो मुझसे होगा which is the right answer. ये आप ध्यान में रखें. Okay, let's talk about vascular ectasias first. So when I was in my school, I saw
there was a guy in our locality, और उसके मुंह पे ना बिल्कुल इस जगह के ऊपर पर्पल कलर का एक बहुत बड़ा सा निशान था. So I would look at him and wonder and I would think कि यार इसने शायद वो लाल दवाई लगाई है, और उसके बाद जो है उस जमाने में एक टिंचर टाइप की मेडिसिन आती थी और उसको लगाने के बाद उसका मार्क पड़ जाता था. So I would think कि यार इस बंदे ने वो दवा लगाई थी और उसके बाद शायद वो साफ नहीं हुई, उसको चोट लग गई होगी और वो दवा, और पता नहीं कितने बेवकूफ लोग हैं कि उन्होंने जो है वो इस किस्म की दवा यूज की है कि उसके नतीजे में ये अटेंडेंस आप लोग बाद में बात कर लीजिएगा, मैं पढ़ा भाईजान बाद में करें. सो हाँ जी. सो आई वुड थिंक यार ये इस स्टूडेंट ने, ये बंदे ने जो है वो एक तब उसको कोई चोट लगी थी और उसने वो, पता नहीं, मैं इतना बेवकूफ सा बच्चा था. आप लोग माशाल्लाह अक्लमंद होते तो आप लोगों को चीजें पता होती हैं, लेकिन ये कि बहरहाल आई वुड थिंक यार ये कोई इसने मेडिसिन लगाई हुई थी, अपने ड्रग लगाई थी, और उसके नतीजे में पता नहीं कितने बेवकूफ घर वाले थे कि लेकिन वो उसको पोर्ट वाइन स्टेन था. सो पोर्ट वाइन स्टेन एंड नेविस फ्लेमिस बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रक्चर, और फर्क सिर्फ ये है कि नेविस फ्लेमिस जो है वो कुछ अरसे में और छोटा होता है और कुछ अरसे में जल्दी से रिग्रेस हो जाता है, गायब हो जाता है. बर्थ मार्क इसे कहते हैं. और पोर्ट वाइन स्टेन जो है वो रादर इट ग्रोज एंड स्टेज देयर. अच्छा, इसके साथ एक खास बात अटैच है कि अगर ये ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ डिजीज कॉल्ड स्टूज वेबर सिंड्रोम. और उसके बहुत सारे फीचर्स थे, 3-4 मैंने लिखे हैं यहाँ पे. वन इज फेशियल पोर्ट वाइन निवाई, सेकंड वन इज फेशियल एंजियोपैथी, मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर्स. और उसमें एक सेंटेंस और लिखा हुआ था बड़े मजे का कि नॉट मजे का, कि अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं, दैट मींस कि ही इज हैविंग दिस नेवस फ्लेमिस इन trigeminal distribution, so you should look for other abnormalities in the vascular system. So there would be other abnormalities as well. इसी तरह autoimmune disease के बारे में कहते हैं कि if there is one, that means you will have other problems elsewhere in the body as well. So the third one is spider telangiectasia, which looks like a spider, or the last one is hereditary hemorrhagic telangiectasia. ये ऑस्लर वेबर रेंडोर डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, वाइड स्प्रेड होता है, कभी भी रप्चर हो जाता है और उसके नतीजे में बहुत शदीद किस्म की ब्लीडिंग होती है. ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे दैट इज. ठीक, चलिए अब इनकी फोटोज देख लेते हैं. आप में से कोई इन साहब को पहचान सकता है? एनीवन? आपके जमाने से पहले के हैं. नो? So this guy is the Russian president, ex-Russian president Mikhail Gorbachev, और ये है एग्जाम्पल नेवस फ्लेमिस और पोर्ट वाइन स्टेन. जो बच्चे साहब हैं इनके ऊपर जो स्टेन है वो प्रॉब्लली चला जाएगा जल्दी, और गोर्बाचेव साहब की उम्र आप देख लें तो वो पोर्ट वाइन स्टेन के साथ मौजूद है. दिस इज द स्पाइडर टेलेंजेक्टेसिया, लुक्स लाइक स्पाइडर. और ऐसा नॉर्मली ये तो हेरिडिटरी है, बट लिवर डिजीजेस जब होते हैं ना तो उसकी सूरत में जब पोर्टल वेन की सर्कुलेशन के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, बिकॉज इट encounters cirrhotic liver which causes increased vascular resistance. So इसी तरह की निवाएं जो है वो आपको एब्डोमेन पे बनी हुई नजर आने लगती है. जो पोर्टल सिस्टम की वेन्स हैं उनको ब्लड ड्रेन करने में मुश्किल होती है, तो they appear. Third one is hereditary hemorrhagic telangiectasia. It looks like this. It normally bleeds. Okay, then hemangiomas. So you have different types of hemangiomas. Capillary hemangioma, thin walled capillary से बना हुआ होता है, plant stroma होती है इसमें.
Then there's juvenile hemangioma, and these are generally on the skin, so you can see them. So juvenile hemangioma जो है, that looks the same, but regresses by age 7. Then there is a big fungating mass-like hemangioma that is called pyogenic hemangioma. It's not actually pyogenic, but it looks like something having pus maybe. And cavernous hemangiomas, they are large and dilated vascular channels, or normally bleed भी कर जाते हैं, and they are deep. They involve organs मतलब नीचे skin से नीचे भी चले जाते हैं. So this is an example of capillary hemangioma. This is the example of pyogenic granuloma, and this is you see the histology of it, pedunculated mass. This is not from the book आएगी नहीं, but I'll just put it there for your understanding. And the cavernous hemangioma, ये देखें, it looks deep, ominous. And the special one, glomus tumor, ये भी benign है मगर painful होता है, और normally specialized smooth muscle cells से होता है. glomus bodies होती हैं vessels के साथ, उसमें से ये develop होता है the smooth muscle cell के structure से. Generally they are found in digits or under the fingernails. So इसकी अगर आप picture search करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा pictures मिल जाएंगी. I found this one was a bit appropriate. Then there is bacillary angiomatosis, favorite MCQ topic. Another one, glomus tumor was the first, the previous one जिसमें MCQ बन सकता है. So Bartonella एक organism है, इसकी दो species हैं, Bartonella hensley. जितने लोग बिल्लियां रखते हैं मेरी तरह, they should be careful. So this actually causes, जब cat scratch disease भी उसको कहते हैं, और उसके नतीजे में जब बैसिलाई आपकी स्किन में पहुंचते हैं तो उसके बाद they release different chemicals जिसकी वजह से बॉडी रिएक्टिवली वैस्कुलर प्रोलिफरेशन करती है. सो उसके नतीजे में स्किन, बोन, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी जो है वो लीजन डेवलप हो सकता है, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज Bartonella hensley. Then Bartonella quinata, that used to cause something called trench fever. अब common नहीं है, but during the days of Second World War that was common, and it is transmitted by human body lice. पहले तो lice होनी ही नहीं चाहिए, और अगर हो गई है तो कोशिश करनी चाहिए कि उनसे जान छुड़ाई. ठीक है जनाब. So bacillary angiomatosis looks like red papules and nodules surrounded by subcutaneous masses. This picture is from Robbins. So vascular proliferation होती है in response to factor 1 alpha, जो कि bacterial activity की वजह से हो रहा है, और which actually activates the endothelial growth factor, उसकी वजह से vascular proliferation. An intermediate grade tumor which is called Kaposi sarcoma. इसकी special जो association HIV के साथ भी है, इसकी 3 types होती हैं, and one is called classic, second one is endemic to African countries. The classic one affects mainly old age people, endemic African affects the medium to young age people, or transplant associated affects the transplant patients. इसको हम Kaposi sarcoma कहते हैं, and it occurs due to a special type of virus which is called human herpes virus 8 or Kaposi sarcoma herpes virus. So this has an infective etiology mostly, so you should remember that. This is also a favorite MCQ area. And the last one is malignant endothelium neoplasm, that is called angiosarcoma, और इसके अंदर आपको well differentiated भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको poorly differentiated भी मिल जाएगा. Differentiation का extent is very variable, और आपको इसके अंदर जो है वो ढूंढने पड़ेंगे मार्कर्स, ह्यूमन मार्कर्स. यानी आई डोंट नो, अगर आपकी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वर्किंग का नहीं पता है. आई कैन ओनली गिव यू व्हाट आई हैव रेड इन बुक्स. तो आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट क्लास लेते हैं, which who are really fantastic people who
डू ऑल दो स्लाइड्स एंड रीड देम, और उसके ऊपर सारी ट्यूमर हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं वो, और उसके ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट करते हैं। तो उनसे पूछेगा आप कि ये किस तरह करते हैं, वो आपको कुछ फील से बता सकते हैं, मैंने खाली किताबों में पढ़ा हुआ है। सो यू कैन एक्चुअली डू इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी, जिसके जरिए आप उसको स्टेन करते हैं, और स्टेन करने के बाद यू फाइंड आउट सर्टेन ट्यूमर मार्कर्स। जब ट्यूमर मार्कर आपको मिल जाता है तो वो ट्यूमर मार्कर आपको बहुत सारी बातें बता सकता है। नॉर्मली जो वेल डिफरेंशिएटेड है उसमें तो यू कैन लुक एट इट इन द स्लाइड एंड यू कैन सी दैट भाई देयर आर specific vascular structures forming vessels, it has vascular appearance. But if there is a well undifferentiated neoplasm, that means के, और ये सारी बातें मुझे लगता है कि आप पढ़ चुके होंगे, मैं आपकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज इट। तो उसके अंदर आपको ये पता चलता है कि इसका ओरिजिन क्या है। जब आपको ओरिजिन पता चलता है तो देन यू कैन प्रोबेबली डिसाइड on the drugs you're supposed to use for that particular neoplasm. और आजकल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, you are having drugs which are made up of antibodies mainly, or antibody derived drugs which are specific for specific tissues or structures, और उनके आगे नॉर्मली ए भी आता है। और ऐसी ड्रग्स जो हैं, ये जाहिर है जब आप ट्यूमर मार्कर आपको पता चल जाता है कि ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं, तो फिर आप उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ड्रग्स इसमें से एक्सपेरिमेंटल फेज में है, बट बहुत सारी जो है वो यूज भी होंगी। सो अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, 5 year survival rate is only 30% and they metastasize that. Undifferentiated होता है तो it is generally more ominous as compared to the differentiated ones. Then we have cardiac tumors, the last topic आज का। और कार्डियक ट्यूमर्स के अंदर आपके पास प्राइमरी ट्यूमर्स नहीं होते, अनकॉमन होते हैं, और जो होते हैं वो भी बेनाइन होते हैं। ज्यादातर ट्यूमर्स जो हार्ट में आपको मिलेंगे दे आर मेटास्टेटिक, दे हैव कम फ्रॉम समवेयर एल्स, प्राइमरी सीडिंग इज फ्रॉम समवेयर एल्स। सो 5 टाइप के ट्यूमर्स है। यू कैन बी आस्क्ड टू क्लासिफाई कार्डियक ट्यूमर्स, तो आपको ये नाम रटे हुए होने चाहिए। मेक्सोमा, फाइब्रोमा, लाइकोमा, पेपिलरी, फाइब्रोलास्टोमा एंड रैप्टोमाइमा। Most common ones are mexomas and they are found in adults. Mostly mexomas atria में होते हैं, और उसमें से भी ज्यादातर लेफ्ट एट्रियम में होते हैं। ये मेक्सोमा वाला टॉपिक जो है ना, ये भी एमसीक्यू के लिए फेवरेट है। ये कि जो ट्यूमर होता है बेचारा जो वाकई में कॉमन है, सो पीपल टेंड टू आस्क अबाउट देम कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, बट वाइवा में इसके अंदर इतना मटेरियल नहीं है कि आपकी ऑस्पी का एक पूरा का पूरा सेक्शन बन सके, तो एक सब सेक्शन के तौर पे आ सके। And that ends my lecture for today. If you have any questions, I'm happy to answer. पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगी। Is everything clear to you? Yes. Thank you. थोड़ा सा इत्मीनान हो जाता है ये पढ़ के। So कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना we just call it a day. अच्छा जनाब, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो मुझे आपका CR एक अदद ईमेल करते तो मैं आपको स्लाइड सेंड कर दूंगा। मगर मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई ईमेल वसूल नहीं हुआ। तो अगर आपको लेक्चर्स नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहिए तो भाई ये काम अभी अभी कर लो। उसके बाद फिर मैं भी भूल जाऊंगा आपको, और आप भी मुझे भूल जाएंगे। फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि यार किसने पढ़ाया था ये पर्टिकुलर टॉपिक ना। तो ये काम अगर आपको चाहिए तो आप मुझे 1-2 दिन में ईमेल करते हैं और मैं आपको ये चीजें सेंड कर दूंगा। सो दैट एंड्स एवरीथिंग।